اور فرض کر لیجیے حضور اس وقت آ جائے غازی، تب کون سی قیامت آ جائے گی؟ نہ شطرنج کا کھلاڑی چار چالیں آگے سوچ کر چال چلتا ہے، میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے۔ ویسے یہ میرے حال پر آج غیر معمولی توجہ اور مہربانی کس وجہ سے؟ یعنی میں بتاتا ہوں، ذرا صبر کرو، ویسے میں تمہارا رخ زیبا دیکھنے تو نہیں آیا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بینا کا کیا بنا؟ بینا کا؟ میں بزرگوں سے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ اس کے ابا نے تم سے کیا کہا؟ ان کے والد نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ گڈ، آدمی سمجھدار ہے، کھٹک گیا ہوگا۔ پہلے یہ بتائیے شہید بھائی کہ آپ ہیں کس فکر میں؟ میں تمہاری فکر میں ہوں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے غچہ دے دو گے، لیکن جناب میں سراغ لگا کر رہوں گا۔ اچھا، یہ عذرا اور افشین کا اثر آپ پہ کیسے آ گیا ہے؟ اچھا، یعنی ہم ہی سے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ دے رہا ہوں کہ اگر ہم نے مورچہ سنبھال لیا تو بہت برا ہوگا۔ یہ بچوں نے آپ کو وکالت کے پیسے کتنے دیے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے باپ نے کیا کہا تم سے؟ مجھے کیا معلوم ہے بھائی، تم نے اس سے پوچھا نہیں؟ ارے میں پوچھ تو لیا ہوتا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بچی آج کل بہت پریشان رہتی ہے کچھ۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں بھائی، سب کچھ انہی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہے ان کی مرضی تو ان کے ساتھ ہے، لیکن تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیے اگر وہ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو باخوشی رہیں، اور اگر جانا چاہتی ہیں تو بخوشی چلی جائے۔ میں تو مجھے الو بنا رہے ہو، اپنے آپ کو الو بنا رہے ہو، یا اس لڑکی کو الو بنا رہے ہو؟ ہے میں کسی کو کچھ نہیں بنا رہا۔ یعنی کیا مطلب ہے تمہارا کہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یا رہے یا چلی جائے؟ اچھی بات ہے، جو لوگ دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں وہ خود بھی بیوقوف بنتے ہیں اور علی الحساب بنتے ہیں۔ شہید بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ کے لیے حضور والا اصلی گھی کا گاجر کا حلوہ بنوایا، وہ آ رہا ہے۔ جی بس شکریہ، بڑی عنایت آپ کی، آپ ہی کھائیے گاجر کا حلوہ۔ سمجھے، مقوی قلب ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کام آئے گا گاجر کا حلوہ۔ آپ نے کبھی ٹیبل ٹینس کا میچ دیکھا ہے جس میں ایک گیند ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہے اور دیکھنے والوں کی گردنیں عجیب مضحکہ خیز انداز سے گھومتی رہتی ہیں؟ میں پوچھتی ہوں آپ کو کب ہوش آئے گا؟ جب پانی سر سے گزر چکے گا؟ پانی تو سر سے کب کا گزر چکا، آپ تو گزرے ہوئے سیلاب کے نشان باقی ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں مذاق کے موڈ میں ہوں۔ بھئی مذاق تو میرے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بھلا مزید مذاق کی گنجائش کہاں ہے؟ آپ جو یہ جانتے بوجھتے انجان بن جاتے ہیں نا، اسی پر مجھے غصہ آتا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کس طرح آپ ان لوگوں کے اشاروں پہ گھوم رہے ہیں، جس نے جدھر گھما دیا گھوم گئے۔ سبحان اللہ، اے لو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے۔ کتنی صفائی سے بات پلٹتے ہیں آپ کہ آدمی کو اصل بات ہی یاد نہ رہے۔ کیا کہہ رہی تھی میں؟ کچھ کھانے کو منگا۔ جہنم میں گیا کھانا۔ میں کہتی ہوں آپ منصور کی شادی افشین کے ساتھ کر دیں گے؟ ہاں کر دوں گا۔ کب کروں؟ افشین کے ساتھ؟ ارے ہاں بخدا ایسی رونق لگے گی کہ پورا محلہ گواہیاں دے گا۔ میں زمین آسمان ایک کر دوں گی، مگر یہ نہیں ہونے دوں گی۔ یعنی اس معمولی سی ذاتی بات کے لیے زمین و آسمان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتی ہوں عرفی کی ہمت کیسے پڑی ایسی تجویز پیش کرنے کی؟ ارے ہمت کی آپ کیا بات کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے بھائی ہیں، ہمت کی ان میں بھلا کیا کمی ہوگی؟ عرفی کو پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، یہ اوپر ہی اوپر فیصلے کیسے ہونے لگے؟ یہ آپ کے خاندان کی بلندی کا قصور ہے، یعنی ماشاءاللہ ہر ایک سطح سمندر سے کچھ اونچا ہی رہتا ہے۔ ارے عرفی نے بھی حد کر دی، لڑکے لڑکی کو پہلے بتا دیا، والدین کو خبر ہی نہیں۔ ارے نہایت عقل مندی کی، بھائی اسی کو کہتے ہیں ڈائریکٹ ایکشن۔ ماڈرن زمانہ ہے، یعنی لڑکی لڑکے کے معاملات میں عقل مند والدین مشورہ نہ دے کر شکریہ کا موقع حاصل کرتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ افشین کسی صورت بھی منصور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بھئی آخر مناسب کا فارمولہ ہے کیا آپ کے نزدیک؟ وہ ماشاءاللہ صاحب دولت و جائیداد ہے آپ کی طرح، جناب بلند خاندان ہے آپ کی طرح، تیز مزاج ہے آپ کی طرح۔ کمبینیشن برا نہیں ہے، بھئی آخر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی نا۔ آپ سے کچھ کہنا تو انسان کو اپنا دماغ خراب کرنا ہوا۔ یعنی یہ اپنا دماغ خراب کرنا کیا مانی؟ بھئی فریقین کا کہیے۔ ارے حسرت ہی رہی کہ کبھی ٹیپ کا مصرع رک کر سنا ہو۔ 4 2 6 2 8 2 10 2 12۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے تم ہوش میں ہو یا بالکل ہی دماغ چل گیا تمہارا؟ اول تو بلا اجازت دندناتے ہوئے کمرے میں چلے آ رہے ہیں، اوپر سے منہ دیوانے کی طرح نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ کچھ بھی صحیح، لیکن میں اس وقت بہت سنجیدہ ہوں۔
ये तुम नौटंकी के मस्खरों की तरह उर्फी के सामने फुदका करो, मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है। सारे फंदे गिरा दिए कम वक्त। आप मुझे जो चाहे कह लें, लेकिन अफशी की तरफ जिसने नजर उठाकर भी देखा ना तो उसकी आंखों की खैर नहीं है। अच्छा तुम चल तो यहाँ से, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं है। अहमक कहीं का, ये उर्फी का हौसला है जो तुम्हें बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है मैं चचा उर्फी से भी समझ लूंगा, आखिर उन्होंने कहा कैसे, और हाँ और उन्होंने छुप कर वार किया है। मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए फालतू वक्त नहीं है, समझे तुम? लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि कयामत तक, बल्कि कयामत के बाद तक अफशी मंसूर से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उससे मतलब इस बात से? मतलब ये कि आप अपने लड़के को समझा लें। देखो मेरे सामने तुम होश में रहा करो, बिल्कुल ही हवास जाते रहे कमबख्त के। जी मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। अफशी मंसूर से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ना करे, मैं कौन सा करने दूंगी? जरा गौर कीजिए आप, कहाँ अफशी कहाँ मंसूर है, चनिस्बत खाक रहा बाआलम पाक है। फारसी पढ़ी मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि ये शादी जो है ना बिल्कुल बेजोड़ है, बिल्कुल खाक का पेवन नहीं रेशम का पेवन, खाक का रेशम का पेवन का पेवन। क्या कह रहा था? मेरा मतलब कहने का यह है कि जो अफशी है ना, वो अफशी जो है वो रेशम का पेवन है और मंसूर खाक का पेवन। आखिर तुमको पागल खाने वाले लेके क्यों नहीं चले जाते? क्या मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मुझे ले जाएंगे। अलबत्ता लोग समझते हैं। जो कुछ कहना है उर्फी से जाकर कहो। जी मैं तो आपसे कहूंगा, अफशी मंसूर की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों? अफशीन आसमान से उतरी है क्या? और क्या, आसमान से तो उतरी है, उनके खानदान का कोई जवाब नहीं है। तभी यहाँ पड़ी हुई है। वो और बात है, असल में आप मेरी बात को समझ नहीं रही है। बैठो, उधर बैठो। तो डांट क्यों रही हो? जा तो रहा हूँ। मैं कह रहा था कि उनका खानदान बहुत ऊंचा है, साहिब जायदाद है वो, और मंसूर क्या है, फकत हड्डियां गिनते हैं और वो मुर्दों को नहलाते हैं। क्या बक रहा है? मतलब ये कि मुर्दों को काटते हैं। लाहौल वला कुव्वत, कितना गुनाह होता होगा उनको, है जहन्नम में जाएंगे बमा अहलो अयाल। बको मत, जो मुंह में आता है बके चला जाता है बिना सोचे समझे। तो मैं कैसे न बकूं? अपनी लड़की का मामला है जी। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। ठीक है अफशी के लिए भी लड़कों की कोई कमी नहीं है, मैं खुद इसके लिए आला नस्ल का लड़का ढूंढ लाऊंगा। मंसूर भी कोई टटपुंजिया नहीं है। क्यों नहीं टटपुंजिया? बिल्कुल टटपुंजिया लगता है शक्ल से। निकल जाओ यहाँ से सिकंदर। देखिए आपका अखलाक जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं है। आप आज धक्के देकर निकलवा रही है मुझे। आइंदा कभी इधर पर रुक किया ना तो टांगे छाट। अभी टांगे छाट देंगे आप? निकालो यहाँ से। चुप रहे, बात सुनिए। देखिए इसी बिरते पे आप शादी कर रही थी क्या? यानी वो समझाने वालों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है? आज धक्के देकर निकलवा रहे हैं, कल शिटिंग से गोली मार दीजिएगा, गोली मार के निकलवा दीजिएगा। समझ गई ना? जाते हो कि नहीं? जा तो रहा हूँ। अबे आ तो रहा हूँ मैं। क्या कर रहा है? जूडो जानता हूँ मैं। आपने मेरा प्यार देखा, गुस्से देखा भी, चक्कू है मेरे पास। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये कमबख्त। तो जरूर बताती, कोई बात नहीं भाई। आप तो कभी भी नहीं बताती। दरअसल आपको हम लोगों पर एतबार नहीं है ना, इसलिए। पागल हो तुम लोग, भला क्या बात हो सकती है? कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। अच्छा है ना, फिर अंकल ऊपर आकर पूछेंगे कि आप क्यों नहीं जा रही हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझे जाना होता मैं खुद चली जाती। आप अंकल से खफा हैं? नहीं तो मैं क्यों खफा होंगी? तो आप खफा क्यों नहीं होती? आपको होना चाहिए। बिना, प्लीज आप अंकल से खफा हो जाइए। मैं अब तुम लोग ये खेल खत्म करो, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। बीना, ईमान से ये खेल नहीं है। बीना, हम तो इसलिए आपसे खफा होने को कह रहे हैं कि अंकल ने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया सिवाय मेरी मदद करने के। अब भला अजनबियों से कोई खफा हुआ करता है? दूसरे, अगर तुम लोग की खुशी के लिए मैं खफा हो भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? पता भी नहीं चलेगा उन्हें, है ना? मत खफा होइएगा, ऐसे बोर आदमी को लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तुम लोग जाओ, शाबाश। प्लीज प्लीज।
हेलो हेलो। जनाब, मेरे इम्तिहान खत्म हो गए और पर्चे इतने शानदार हुए कि बस। बड़ा कमाल किया है। शहद की मक्खियां काट गई क्या? अब तो मैं भी इलाज कर सकता हूँ। मैं किताब पढ़ रही हूँ और अजरा अंदर है। तौबा तौबा तौबा, किस कदर बदमिजाज लड़की है ये। मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, कम से कम विश तो किया होता। विश तो मैं ऐसा करूंगी कि आप सारी उम्र याद करेंगे। बस इसी किस्म की कुछ विश की मुझे जरूरत है जो सारी उम्र के लिए हो। आपने मना क्यों नहीं किया था? क्या क्या मना नहीं किया था? जो अंकल कह रहे थे। वही तो, आपकी जुबान क्यों बंद हो गई थी उस वक्त? आप मना कर देती। मैं कैसे मना करती? क्यों? वैसे तो आपकी जुबान बहुत चलती है। मेरी जबान भी बहुत चलती है और मेरा मिजाज भी बहुत खराब है। ये आप मुझको बता रही हैं? जनाब, ये रोजे रोशन की तरह आया है मुझ पर, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत देखिए कि मुंह से मैंने उफ भी नहीं की। क्यों नहीं की? रोजे रोशन की तरह आया है तो मना कीजिए ना। आप कहेंगी तो मैं नहीं करूंगा। माँ बदौलत का दिल चाहेगा तो मना करेंगे, नहीं दिल चाहेगा तो मना नहीं करेंगे। बस आपको मना करना पड़ेगा। अफशीं, जिस बात की ज्यादा तरदीद की जाती है ना, उस बात का और पुख्ता यकीन लोगों को हो जाता है, समझ लो। क्या मतलब? थोड़ी बहुत समझ तो होगी आप में। मुझ में कोई समझ वमझ नहीं है, समझे आप? ये तो बखूबी अंदाजा है मुझे। अब अपनी ही बदनसीबी, अब मैं गिला क्या करूंगा बताएं आप। आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दगा नवाजी आपकी, बस इसी किस्म के दिली जज्बात मेरे भी हैं आपके बारे में। आप हर दर्जे फ्लर्ट हैं। 10,000 तो सहेलियां हैं आपकी। माशाल्लाह, देखें रश का मुकाम है। आप झूठ भी बहुत बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और भी आप में हजारों बुराइयां हैं। ओहो, तो महज इसी वजह से तो अंकल ने ये चक्कर हम दोनों का चलाया है। इसलिए कि ये बुराइयों का जो हैरत अंगेज तवाजुन जो मुझ में और आप में मिलता है ना, ये बहुत कम लोगों में होता है। मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता और मैं कयामत तक राजी नहीं होंगी। अच्छा, तो जब अंकल ने आपसे कहा था उस वक्त आपकी जुबान क्यों बंद हो गई थी? आपसे भी तो कहा था। आपकी जुबान क्यों बंद हो गई थी? कौन कहता है मेरी जुबान बंद हो गई थी? फिर आपने कहा क्यों नहीं? क्या क्या नहीं कहा? मैंने कहा था। क्या कहा? मैंने कह दिया अंकल आप हमारे बुजुर्ग हैं तो बस जैसे आपकी मर्जी है बस ठीक है। क्या क्या आपने ये कहा था? जी जी ये कहा था? जी। साहबजादी, क्या आपको मैं नजर नहीं आ रहा हूं जो आप चारों तरफ कुछ तलाश कर रही हैं? या मेरा आदम और वजूद दोनों बराबर है आपकी नजर में? आदाब। अजीत आइए। आपने बुलाया था? इधर इधर बैठिए। मैंने अगर बुलाया भी था तो किसी कत्ल वगैरह के सिलसिले में तो नहीं बुलाया था जो आप इस कदर वहशत ज़दा और खौफ ज़दा चेहरा बनाए हुए। भाई इसे जरा नॉर्मल कर लीजिए, मुझे इख्तिलाज कल्ब होने लगता है ऐसे चेहरे देखकर। और कभी कभार हंस भी लिया कीजिए, कोई तकलीफ तो नहीं होती। हो सकता है शुरू में आदत न होने की वजह से जबड़ों को थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुतवातिर इस्तेमाल से अफाका होगा। आपने कुछ कहने को बुलाया था? और आपसे क्या काम हो सकता है? स्कूल में दाखिला मैंने नहीं लेना, इम्तिहान में नंबर मैंने नहीं बढ़वाने। मुझे हंसती हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं। फरमाइए। जी, बात दरअसल ये है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों के जाती मामलात में दखल नहीं देते, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं। जी। मैं आपके जाती मामलात में इसलिए दखल दे रहा हूं कि आप अपने जाती मामलात में गड़बड़ फैला देंगी और इसका असर न सिर्फ ये कि आप पर होगा बल्कि बहुत से इलाके इसकी लपेट में आ जाएंगे। मैं समझी नहीं। अरे समझ ही का तो फिर है, वरना क्या बात मुश्किल है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अंदरूनी तौर पर इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना बैरूनी तौर पर नजर आता हूं। जी। नंबर 1, आप परेशान हैं। फिर नंबर 2, आप यहां से भागना चाहती हैं। नंबर 3 कि आपके भागने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इंसान अपने आप से ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। समझिए आप? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूं? आप बहुत अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीती रहिए। क्या बरजस्ता कहा है आपने। भाई ये जुमला जवानी में सुनने की बड़ी हसरत थी, लेकिन खैर बुढ़ापे में भी बुरा नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप बच्ची हैं और आप बेवकूफ हैं। जी नहीं, ना मैं बच्ची हूँ और ना मैं बेवकूफ हूँ। भाई हमारे बुजुर्गों में एक साहब थे सुकरात। उनका कहना यह था कि जो आदमी अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझता है वो हद से ज्यादा बेवकूफ होता है। जी। दरअसल मैं कहना चाहता था कि जरा इधर आइए, बैठिए। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं उस पर अमल कीजिए। जिन चीजों से परहेज बताऊं उनसे इज्तिनाब कीजिए, अल्लाह शिफा देगा। जी। आपका मरज यह है कि आपके शऊर और लाशऊर में
कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पकड़ा तो मैं ही जाऊंगा ना। मैं डरते हो? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था। नहीं नहीं, मैं डरता वरता बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये है कि कोई काम आंखें बंद करके ना करूं। मियाँ जीने की बातें करो, जीने की बातें, बड़ी बड़ी बातों पर नजर लग जाती है। नजर? नहीं, नजर नहीं लगेगी मुझे। ताबीज पहने हो। शाबाश शाबाश, अल्लाह तुम्हें नजरे बस से बचाए। आमीन भाई, तुम आमीन। जैसे लोगों का दम बड़ा गनीमत है इस दौर में, मिलते कहाँ ऐसे लोग। हैं? बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि तुम्हें तो स्टोर कर लेना चाहिए। क्या? आपकी बातें बड़ी चक्करदार होती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आती। अरे समझने की जरूरत भी नहीं है, बेकार दिमाग पर जोर डालते हो। हाँ। ये खत लेकर इसी पते पर चले जाओ, मेरा सलाम कहना और ये खत दे देना। अच्छा, हाँ। तो और तो कुछ नहीं करना है? ना, सिवाय इसके कि अगर किसी को इस बात की भिनक पड़ गई तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है। क्यों? मैंने क्या किया है? आप मुझे धमकी काहे को दे रहे हैं? मेरी जान की क्यों खैरियत नहीं है? अरे भाई, इसलिए कि जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुमने यहाँ किसी को भी इस खत के बारे में या अपने बारे में या किसी और बारे में बताया, हाँ। तो ये तावीज भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। क्यों? क्या मेरी जान फालतू की है क्या? है? ये लीजिए अपना खत, किसी और से भिजवा दीजिएगा। एक तो काम मैं सबका करूं, दूसरे में मुफ्त में मारा भी जाऊं। वाह 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 वाह। अजय भाई, तुम्हारे अलावा और है कौन भरोसे का आदमी यहाँ पर, इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तो वो तो ठीक है, लेकिन खत सीधा साधा लिखिए ना, मारधार का क्यों लिखते हैं? भैया, अगर तुम ये खत लेकर नहीं गए तो किसी की जान चली जाएगी और फिर तुम्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। किसी की जान चली जाएगी? हाँ। तो क्या इसमें कोई बम तो नहीं रख दिया गया है? आजकल बमों का बड़ा फैशन है। घास खा गया है क्या? खत में भरा बम कैसे आ सकता? अच्छा लाओ, अगर तुम नहीं लेकर जाना चाहते तो न जाओ, लेकिन इतना याद रखो कि एक लड़की का कत्ल हो जाएगा और उसका खून तुम्हारी गर्दन पे होगा और फिर तुम रोज़े महशर खुदाबंद के सामने खड़े हुए होगे, कातिल की जगह बंधे हुए। क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कत्ल वतल भी नहीं किया मैंने तो। खामखा मेरी जान के दुश्मन हो रहा। लाइए खत दे दीजिए, चला जाता हूँ। लेकिन याद रखिए, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा, समझ गए ना आप? और क़यामत के दिन आप मेरे सामने खड़े हुए, समझ गए ना? हाँ। हाँ भाई, उर्फी में तुम्हें बताना भूल ही गया था कि कल जरा मैं वो बीना को लेकर जा रहा हूँ। जी? अरे भाई, वो बच्ची है ना बीना, उसे इमदाद हुसैन के घर छोड़ने जाना। किसको कहाँ छोड़ने जाना है? ये आपको यकायक इस कदर परेशानी क्या हो गई है, या मुझे कोई गलत फहमी हुई है? ये आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बीना जाना कहाँ चाह रही है, और ये इमदाद हुसैन कौन है? तुम काहे को फिक्र करते हो भाई? वो दरअसल उनके कोई रिश्तेदार हैं और फिर दूसरों के मामलात में दखलंदाजी चेवानी दारत। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। पूछो, सवाल पूछना अच्छी बात है, मालूमात आम्मा में इजाफा होता है। जी, कि बीना जाना कहाँ चाह रही है? यानी किस कदर नाकाबिल यकीन बात है कि आपकी छत के नीचे एक मजलूम लड़की पनाहगुज़ीन है और आपको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हालांकि आपको उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए था। भाई, मेरा मतलब ये है कि अगर आप जरा सा प्यार से उससे पूछते तो वो आपको भी कुछ न कुछ बता देती ना। आखिर मुझे भी बताया कि नहीं? तो उन्होंने आपको ये भी बताया कि वो यहाँ से जा क्यों रही है? क्यों जा रही है? भाई, जाहिर है कि आप जबरदस्ती उसे रोकेंगे नहीं और वो खुद से रुकेंगी नहीं। शहीद भाई, बात मेरे रोकने की नहीं है, बात उनके रुकने की है। भाई, अगर वो रुकना ही नहीं चाहती यहाँ तो रोकने का कोई सेंस ही नहीं है। हाँ, जाहिर है। मुझे ये तो नहीं मालूम कि आप उसे नहीं रोकना चाहते या वो खुद से नहीं रुकना चाहती। सूरत हाल जो कुछ भी हो, बहरहाल मुझे तो पता नहीं। मैं तो कल उन्हें इमदाद हुसैन के घर छोड़ने जा रहा हूँ। क्यों? भाई, आप मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा करके मुझसे सवाल जवाब क्यों करने लग गए? भाई, उसकी मर्जी, उसकी अब्बा की मर्जी। तो आप जा रहे हैं छोड़ने उन्हें? और कौन जाएगा? और वैसे भी अकेली लड़की को छोड़ना ठीक नहीं है। खुदा जाने कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं। ये सब कुछ आपको कैसे मालूम हुआ? जी, मुझे अल्लाह ने 2 कान, 1 अदद दिमाग अता किया है और थोड़ा सा खौफ खुदा भी है मुझे। अच्छा, तो आपने बीना से बात की थी और उन्होंने ये आपको सब कुछ बताया? जी नहीं, मेरी खोपड़ी पर एंटीना लगा हुआ है जो बराह रास्त वसूल करता है लहरें दूसरों के दिमाग से। हमें तुम्हें हुआ क्या है? इन्हें खामखा संजीदा हुए चले जा रहे हैं। भाई, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे उनके वालिद को जवाब देना होगा। हाँ, उनके वालिद को आप जवाब भी दीजिए और ये खत भी दीजिएगा जो बीना ने उन्हें दिया है, ताकि वक्त जरूरत काम आए और सनद रहे। तो आप यहाँ अकेले जा रहे हैं? मेरा मतलब है कि
जाना कहाँ है? हाँ हाँ, तो मैं अकेला डरूंगा थोड़े ही जाते, भाई सुबह जाऊंगा शाम को वापस आ जाऊंगा। और तुम्हारी आपा बेगम से मैंने कह दिया कि मैं उर्फी के काम से दिन भर के लिए जरा जा रहा हूँ, उन्हें हवा न लगने पाए, वरना मेरी जिंदगी के सारे दिन कटकटा कर पूरे हो जाएंगे गिने बगैर। बेहतर है। तो आप कल सुबह जा रहे हैं? हाँ, वो सवेरे सवेरे चले जाएंगे। वो बीना ने ताकीद की थी कि लड़कियों को न मालूम होने पाया कि वो जा रही हैं। बीना ने मेरे बारे में क्या ख्वाहिश जाहिर की थी? तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं कहा था उन्होंने। हाल बता, अगर तुम चाहो तो सुबह उठ के उन्हें खुदा हाफिज कह देना। अगर तुम कहते हो तो तुम्हारी तरफ से मैं खुदा हाफिज कह दूंगा उन्हें। भाई इतना लंबा रास्ता, कुछ तो बातें करता हुआ जाऊंगा, कम से कम यही बताता जाऊंगा। आदमी शक्ल देख के डर जाए, रोने का और भी कोई तरीका होता होगा। आप चाहिए ना, आपसे किसने कहा कि हमारे पास बैठ जाए? हम तो ऐसे ही होंगे, बेचारी पता नहीं कहाँ होंगे, अकेले फिर रही होंगी। इनको कौन सी फिक्र है, ये हमदर्दी जो हाँ। इनको बता रही हो? सारी फिक्र और हमदर्दी इस तरह भय भय रोने से ही होती है। हाँ। अंकल को भी कोई परवाह नहीं है जरा से भी। तो आप क्या समझ रही हैं? अंकल भी आके बराबर में आपके बैठ गए, वो भी भाड़ भाड़ के रोना शुरू कर दे? कोई अक्ल है तुम लोग में? बिल्कुल। अकेले में तो रो लेते ना। ओह माय गॉड। अंकल मिली अंकल? हैं? कौन? बीना? और कौन से 10-5 लोग हो गए। भाई उन्होंने खुद ही जाना मुनासिब समझा होगा। तो आप रोक नहीं सकते थे उनको? उनसे पूछ के जाती तो मैं उनको रोकता, मुझे क्या मालूम। आपको तो कभी कुछ मालूम ही नहीं होता है। अरे 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 ये क्या शुरू कर दिया भाई तुमने? यहाँ सुबह से यही तमाशा हो रहा है। हाँ, ये तमाशा है। वो पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है। अंकल बस ये लड़कियां चाहती हैं कि आप जंगलों में निकल जाएं। दाढ़ी तो आपकी बड़ी भी ऑलरेडी, बाल कुछ और बढ़ा लें और मूछें थोड़ी मतलब इधर से उधर। हजरत नहीं है जी कुछ करने की, अब वो आएंगी भी नहीं यहाँ। चलो हजरत, हटे यहाँ से। हाँ। अम्मी और अब्बू चले गए, अंकल चुपचाप बैठे, फिक्रमंद है। तुम लोग को इतनी दूर से फिक्रें भी नजर आ गई और परेशानी भी। अरे वो टहल रहे और सिगरेट भी तो पी रहे। सिगरेट पी रहे हैं? हाँ। और परेशानी में बालों में उंगलियां फेर रहे और बाल खींच रहे। देखो ख्याल रहे कि वो पूरे बाल है ना वो हाथ में ही ना आ जाए। हैं खींच खींच। अब बैठ गए, बिल्कुल चुपचाप है। देखो कि रो तो नहीं रहे। हैं अगर रो नहीं रहे तो रोना चाहिए दिल में। अच्छा रोना चाहिए तो ऐसा करो, ये रुमाल लो, रुमाल दो भाग के। शाबाश। देखो देखो सर पे हाथ रख के बैठ गए। ईमान से ये परेशान है। हाँ, बीना के लिए परेशान है। सच सच। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इन दोनों लड़कियों की दिली मुराद भर आई। वाकई ईमान से। अच्छा चलो आ रहे हैं तरीके ही। चचर भी इंसान को अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है? जी मैं ये कह रहा था कि मायूसी जो है ना वो कुफ्र है, कुफ्र। और हाँ, आप अपने बालों को इस तरह न नोचा करें, थोड़े से रह गए। तुम आए कहाँ से हो मियां? मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता, मुझे आप पर तरस आ रहा है। मेरा दिल तो बहुत नाजुक है, पत्थर की तरह। नहीं मेरा मतलब है शीशे की तरह। और वैसे भी किसी का राज फाश तो नहीं करना चाहिए ना। हसना जी देखो, मैंने तुमसे 1000 मर्तबा कहा है कि मुझसे बात करते वक्त अपनी अकल दुरुस्त रखा करो, समझे? चाचा उर्फी, इस वक्त तो मैं आपकी बात का बिल्कुल बुरा भी नहीं मानूंगा, समझ गए ना आप? क्योंकि मुझे आपकी दिल की कैफियत का बखूबी अंदाजा है। और हाँ, बकौल शायर, दिल टूटने की तुझको हो भी खबर तो क्यों कर, ये शीशा नहीं है जालिम, आवाज जो छन से निकले। Oh my God। हाँ। आखिर तुम मेरे किस गुनाह की सजा में मुझ पे मुसल्लत किए गए हो? नहीं चाचा उर्फी, गुनाह तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
तो तुम कहने क्या आए हो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद की एक किरण गहरे बादलों में छुपी हुई है, हैं? गो के आप उनके काबिल नहीं, मेरा मतलब है आपसे ज्यादा अच्छी हैं वो। असनाद, जी होश में हो तुम? एहमक कहीं का। चौधरी आप देखिए, परेशानी में ज्यादा ज्यादा सिगरेट ना पिया करें, खांसी हो जाती है इससे। हाँ, और इसमें परेशानी की वजह भी क्या है आखिर है? ये वो वजह नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मेरा मतलब है आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? असनाद, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं, समझे तुम? तो फिर आखिर समझिए ना, कब समझेंगे? और वो तो समझ बूझकर चली भी गई, बकौल शायर। असनाद, get out। सलाम अलैकुम। से गए में बड़ी बुरी हालत है, तुम जल्दी से आ जाओ। अगर ये काम ना करते तो आज ऐसी हालत में होती। कैदी अबरार अहमद मौजूद है? कैदी अबरार अहमद मौजूद है? बड़ी परेशानी। कैदी अबरार अहमद मौजूद है? ठीक है, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इरफान अहमद कहते हैं। बीना ने आपके नाम ये खत दिया है और वो आपकी हिदायत के मुताबिक इमदाद हुसैन साहब के चली गई है। ठहरिए, मैं खत पढ़ लूँ। मैं अब तक आंखें बंद किए हुए आपकी उंगली पकड़े ना जा